How are you students? I hope all are you okay. Now today your subject is Sanskrit and lesson number 10 Doivarikasya Sevanishta. That means born in Rajasthan Pandit Ambika Dutt. Okay. So he was the famous poet writer of the Sanskrit. So Sanskrit is ancient language, you know that one. So Sanskrit is the very easy subject, not easy. If you want to read, that is easy. If you don't want to read, that is not easy. So I hope you understand that one, and this story is very interesting. So in Sanskrit you know some story is there. हितोपदेश पंचतंत्र. मैं अगर किसी को डायरेक्ट आपको कुछ एक स्टोरी बता रही हूँ, उसके मार्फत अगर उपदेश दूँ तो आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है बेटा ये मत करो, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, अरे मैडम क्या बोलते रहते हैं. बट जब मैं स्टोरी के मार्फत बोल रही हूँ तब आप उसको देखते हो जी हाँ ठीक है चलो ये देखो. आप आज मैडम बोल के नहीं, सर बोल के नहीं, टीचर्स बोल के नहीं, कोई भी आपको कुछ बोलते हैं तो वो आपको लगता है मुझे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो स्टोरी के मार्फत दे रहा है तब आपको लगता है कुछ तो है. तो हितोपदेश पंचतंत्र मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, टुडे ऑल्सो आई एम सेइंग. ओके. तो ये जो है ये एजुकेटेड देयर, तो ऑक्युपाइज ए स्पेशल प्लेस अमंग द मॉडर्न संस्कृत राइटर्स. ओके. ही इज वेल नोन फॉर हिज मॉडर्न शिवराज विजय. आई होप यू hear the name Shivraj Vijay. He was the famous writer of the Sanskrit. The style of the Sanskrit novel is easy as well as serious. The flow of the narrative is smooth and hold the attention of the reader. Okay. The novel deals with many of the heroic adventures of Chhatrapati Shivaji. You know the Chhatrapati Shivaji. Also included in the saga of his many periodic adventures. There were many factors responsible for this victories. Of special importance of the fact that even the lowest of the servants was honest, because he was honest and he looked after the courtiers of his country, kingdom, and he looked each and everybody as good as well. वो छत्रपति शिवाजी ऐसे थे जी, उन्होंने खुद भी काम करते थे, दूसरों काम करे और ऑनेस्ट रहे, वो उनका मेन उद्देश्य था, मेन एम जो था दैट वाज. ओके. तो फिर फोकस ऑफ द फेथफुल इज द मास्टर, और प्रभु के ऊपर वो लोग बहुत फेथफुल थे. देन द प्रेजेंट एक्सेप्ट प्रोवाइड्स द फोर्थ ऑफ द गार्ड हु इज परफॉर्मिंग एन ऑर्डिनरी जॉब, इज फेथफुल टू हिज मास्टर विदाउट बीइंग अट्रैक्ट ऑफ द ग्रेट temptation or advice. This guide is an ideal even today also. The aim of this lesson is that along with the sense of service, honesty should be instilled in the studies for students. Attention should be paid to the formation of past participle and the conduct with verbs in the present tense. You know the verb present tense. Verb in English, auxiliary verb is there. You know that one. Read, write, sleep, all are auxiliary verb. Then in Sanskrit we can say the root. We can say the root. आना जाना खाना पढ़ना लिखना, ये जो verb है इसको हम लोग इंग्लिश में जो auxiliary verb बोलते हैं उसको संस्कृत में बोला जाता है रूट, और उसकी संस्कृत होता है धातु रूप. जैसे गम, गम मतलब गज धातु, गम मतलब जाना. इंग्लिश में गो भार्ब होता है, उसको संस्कृत में बोला जाता है गम धातु. जब हम लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, गज धातु था. तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं, तीता अंति सीता था मी व म, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छतो, गच्छामि गच्छाव गच्छामः. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन द संस्कृत देयर आर थ्री नंबर्स, फर्स्ट सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर. यू नो दैट वन, you already heard in the 8th standard also. So there are number, singular number, dual number and plural number, and the person is the first person, second person and third person. First person, that means I, we two and we all. Second person, you, single number, you two, dual number and you all, plural number. Third person, he, she, it is singular number, they two, dual number and they all plural number. These are all are verb including this lesson. Okay. When you have to read this lesson, you can find out this verb.
तो यू नो द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस तो आपको क्या लिखना है, अगर नम धातु, नम मतलब सैल्यूट बबू, तो यू कैन से नमति नमत नमंती, नमसी नमत नमत, नमामि नमाम नमावो। ओके, बट व्हेन यू हैव टू से द फ्यूचर टेंस, तब टेबल क्या आता है, सती सत संति, शशि शत शत, सामी साव साम। तो तब क्या होगा, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामि। तो ऑब्वियसली वी हैव टू से द सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर। शुड बी क्लियर दिस वन। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन। एकदा दैवारिको भव्यमूर्ति सन्यासीम अपश्यत ततोदय एवं वार्तालाप अभवत्। दिस इज द ड्रामा with the Doivaru. Doivaru they mean in doorkeeper. Doorkeeper and one sage was there. They were standing and their conversation mentioned in this lesson. Okay. Sannyasi, katham asman sannyasin api tiraskasi. Why you are insulted me? Sannyasi, he asked, why you insulted me? Doivariko, bhavam na pranamam. I salute you. Parantu shakyo paricham adatta na kaschit praveshtum aharti. At first you have to give your identity, then you have to go inside. अगर आप नहीं देते हो तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। दैवारिको और सन्यासी में एक बात चल रहा था। सन्यासी सत्यम खांतो अयम ते अपराधो, आई नो इट इज नॉट योर फॉल्ट, किंतु अत्तो पवित्रतम सन्यासी पंडित ब्रह्मचारी स्त्रियो बाला च न अवरुद्ध सकता। बट आप जो लेडीज होती है, जो सन्यासी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो लोग को आप कभी भी आप रुका नहीं सकते हो। डोंट स्टॉप देयर इन फ्रंट ऑफ द डोर। आप वो लोग को दे शुड बी अलाउड व्हेनेवर दे वांट टू गो इनसाइड टू मीट द किंग। जब वो लोग राजा के साथ मिलने चाहते हैं, आप देने में मजबूर हो, आप दरवाजे में रुका नहीं सकते हो। सन्यासी ने बोला सत्यम दैवारिको, सन्यासी बहुतम प्रियम वयम दैवारिको ब्रह्मण अपि आज्ञा न प्रतीक्षामहे। तो दैवारिको डोरकीपर बोला, आई नो आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर ए सेज व सेंट। आप एक सन्यासी हो, बट इट्स माई ड्यूटी शुड बी अलाउ ओनली द लेडीज व्हेन दे वांट टू गो इनसाइड, आई अलाउ देम ओनली, नॉट अदर्स। आई नो यू आर सेंट व सन्यासी व सेज। सन्यासी साधु मार्गम आदेशो महाराज निकटे गंतुम इच्छामि। बोले ओके इट्स ओके, बट आई वांट टू मीट विथ द किंग, सो आई हैव टू गो इनसाइड द किंगडम। दैवारिको न शक्तम, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रभाते महाराजस्य सन्ध्योपासन काले प्रवेश कर्तुम महर्षि। यू हैव टू कम ऑन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन टुमारो, देन यू हैव टू गो इनसाइड ऑफ द किंगडम। तो तब मैं आपको परमिशन दे दूँ, आप अंदर जा सकते हो सुबह जब महाराज अपने सिंहासन में बैठेंगे। नॉट टू रात्र, रात में तो अलाउ नहीं है, नॉट इन एट नाइट। सन्यासी किम कोपी रक्त न भविष्यति, एनी हाउ आई डोंट वांट टू गो इनसाइड, मैं किसी हालत में अंदर नहीं जा सकता हूँ। दैवारिको आहुतान परिचितान च परित्यज्य न कोपी, नो इट इज नॉट अलाउड, because it is my duty, I should be stopped here to you also. I know you are sent, but also विशेषत भवादिश्चा ये खलु तुम भी धारका दारान दारान प्रभवती। I know you have to go door to door because you are the saint. आप दरवाजे में जाते हो हाथ में कमंडलूल लेके, कमंडलूल का मतलब कमंडलूल। सन्यासी स्वागतम सर्वदा सुजग दैवारिको, तो उन्होंने अपने आप में क्या बोला, जी हाँ दिस डोरकीपर इज परफेक्ट। एक्चुअली दैट सन्यासी वाज नॉट रियल सेंट फॉर सन्यासी, वो सन्यासी सचमुच सन्यासी नहीं थे। पुनः इमं परीक्षा इतु पोषयन्ति प्रकाशम दैवारिको अत्र आगच्छ किमपि कथयितुम् इच्छामि। तो उन्होंने फिर से दैवारिको डोरकीपर का ऑनेस्टी टेस्ट करने के लिए उसको बोला, कम दिस साइड, आई वांट टू टॉक विद यू, आप थोड़ा साइड में आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसको बोला दैवारिको। दैवारिको उपस्थित तो कथा तो ठीक है, ओके आई एम कमिंग, बोलिए प्लीज से। सन्यासी तू तो दैवारिको सी, यू आर ओनली डोरकीपर, कदापि धनी को न भवसी, यू विल नॉट बी रिच पर्सन एनी हाउ एनी डे। पति तू
कन्नड़ में च वयं विचरम स्वयं रसायन तत्व जानी। तो बोले आई वांट टू गिव यू सम रिवॉर्ड, यू विल मेक ए रिच पर्सन इफ यू वांट टू गिव मी अलाउ टू गो इनसाइड ऑफ द किंगडम। अगर तुम किंगडम जाने में देते हो तो मैं तुमको कुछ दूंगा जिसके कारण तुम अमीर बन जाओ। दैवारी को भगवत नाम अग्रे अग्रे बोलो, व्हाट इज योर नेम एंड से बोलते जाओ। सन्यासी यदि मम प्रवेशं न तम अपराधासि तर्हि तुभ्यं यथेष्ट रसायन दानामि। आई वांट टू गिव यू रसायन, मतलब कुछ केमिकल्स देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव सम केमिकल्स, आपको कुछ केमिकल्स ऐसा चीज़ देना चाहती हूँ। हैं तेन पंचाशत्व तुला मार्फत ताम्र सुवर्ण भविष्यति, तुमको मैं कुछ तामा और सोना देना चाहता हूँ जो तुम्हारा फ्यूचर में काम आएगा। यू विल मेक ए रिच, एक अमीर बन सकते हो। मुझे मालूम है अभी आप डोरकीपर हो, आपके पास इतने पैसा नहीं है, अगर आप बिना मतलब कभी अमीर बन नहीं सकते, लेकिन अगर मैं आपको कुछ तामा कुछ सोना का ये देता हूँ, हाँ, तो तुम बन सकते हो। दैवारी को आ कपट विश्वासघातक, हाँ, बोला तुम तो इतना क्रूर हो, तुम तो बेकार हो, ना यू गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम इधर से जाओ, बिकॉज मुझे राजा की बात सुननी है। आई एम ए डोरकीपर, आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी। उपदिशसि न वयं तद्दिशम् अतः कथं पितम् आगच्छसि अहं तं कस्मैचित् गुप्तचरं मन्ये दुर्गन्धं च निवेद्यं च दण्डयिष्यामि स तं विज्ञानं यथेच करिष्यति। दैवारी बोले इट इज माई ड्यूटी, आई वांट टू डू माई ड्यूटी, आई डोंट वांट टू टेक योर गोल्डन एंड ब्रॉन्ज एंड वॉट एवर यू वांट टू गिव कॉपर। तो मुझे ये आप मत दिखाओ, मुझे मत दो, क्योंकि मेरा एक ही ड्यूटी है, वो है ये डोरकीपर की ड्यूटी, जो करके मैं खुश हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सन्यासी परित्याज्य, हाँ ओके, उसको छोड़ो, लेट देम ना हो पुनः अगस्यामि नैव पुनः कथयिष्यामि। तो उसने अभी बोला ठीक है, आई डोंट वांट टू से अगेन दिस टाइप ऑफ ओके। तो आप छोड़ो, अभी छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। दैवारी को तद विगत तम हस्ते न विद्ता न आती। फिर उसने उसका हाथ से लाइट लेके अपने मुंह की तरफ देखा। सन्यासी गोपाल प्रकाश दीपस्य समीप दैवारी को भी जानासी मम आर यू नो मी, जब वो अपने इन फ्रंट ऑफ हिज फेस, है वो आपने लाइट लेके सन्यासी साधु सन्यासी ने क्या किया, लाइट लेके अपने मुंह के ऊपर दिखा के पूछ रहा है आर यू नो मी, आप मुझे पहचानती हो। दैवारी को निपुण निरीक्षक अच्छा से देख दिया। आए आर्यो खलु भगवान आर्यो कंतुम हरते, ओह माय किंग प्लीज फॉरगिव मी, हैं आई वांट टू डू माय ड्यूटी ओनली, आई डोंट वांट टू इंसल्ट यू, आई नो यू। तो बोला यू फॉरगिव मी। देन सन्यासी तस्य पृष्ठे हस्त तृणस्य दैवारी को मया तेन परीक्षा कृत्वा तं योग्य स्थाने नियुक्त असे उत्तिचाय अल्लुपश तादृश कविता पुरस्कार भवन भवंती। हैं तो आप क्या कर रहे हो, आपने जो ड्यूटी किया, दैट्स वाई आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई वांट टू गिव यू प्राइज रिवार्ड, बिकॉज सचमुच आपने, मैं सन्यासी के बेस में आया था, लेकिन मैं आपका परीक्षा लेने आया था। मैं आपका क्या लेने आया था, मैं आपका परीक्षा लेने आया था, लेकिन आई नो यू विन दैट एग्जाम, आपने वो परीक्षा में जीत गए। सो आई वांट टू गिव यू रिवार्ड, मैं आपको रिवार्ड देना चाहता हूँ। अहम तक प्रामाणिकता प्रश्न नित्य पुत्र वर्तते सीमान की अनुतिष्ठिति संप्रति सो। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर जॉब, सो कीप इट अप एंड स्टे। ओके बेटा, तो जो दैवारी को था डोरकीपर था, उसका जो ड्यूटी था वो बोला गया था अंदर से एक लेडीज छोड़ के और छोटे बच्चे छोड़ के किसी को रात को अलाउ नहीं था, चाहे बच्चे हो, साधु हो और कोई भी हो, तो किसी को अलाउ नहीं करना था। सन्यासी ने अपना वही काम बरकरार रखा, उन्होंने किसी को अंदर आने नहीं दिया था, किसी को अंदर आने नहीं दिया था। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसको गिफ्ट किया। तो जिसका जो ड्यूटी होता है, वो ड्यूटी अगर वो सही ढंग से करे तो एक दिन ना एक दिन वो पता चल जाता है। तो राजा उसका एग्जाम परीक्षा लेना चाहा और वो परीक्षा में डोरकीपर ने उत्तीर्ण। अगर डोरकीपर लालच होता था, अगर वो लालची होता तो क्या करते, वो राजा जब तामा सोना देना चाह रहे थे वो ले लेते, तो राजा का भी उसके ऊपर से विश्वास हट जाता। ओके बेटा,
So now take one pencil in your hand and open your book page number 40 and 41, exercise 1 to 2. Okay. So you know in the Sanskrit, noun, that means name, pronoun, sarvanam. Pronoun, that means sarvanam, and adjective and adverb. 4 are there, and verb already there because without dhatu root, we can't write any Sanskrit sentence. आपको मालूम है जैसे इंग्लिश में होता है, विदाउट इंग्लिश में भार्ब बिना कोई सेंटेंस पर ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, तो संस्कृत में भी वही चीज़ होता है. ओके. दैवारी को कश्य अक्तम अपि न प्रतीक्षते सन्यासी ब्राह्मण सेनापते न निपते. तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्राह्मण. दैवारी को किसको आने नहीं दिया था. दैवारी को कम अपश्चात सन्यासी गुप्तचर निपम मन्नते. राजा को देखा था, गुप्तचर को देखा था, मानवीय इंसान को देखा था, ना सन्यासी को, तो सन्यासी नहीं. ओके. फिर चले जाओ 41 पेज. अहम तांग गुप्तचरो डैश मन्ने मन्नन्ते मन्नसे दुर्गाक्षम, तो मन्नन्ते. ठीक है. बोला गुप्तचर मानते हैं तो मन्नन्ते. ते ताम अन और ताम ताम जो टेबल है वो टेबल से दिया गया था. न कदापि ध्वनि को न भविष्यसि भविष्यतम भविष्यति भविष्यन्ति. भविष्यत हो गया सेकेंड पर्सन, भविष्यति हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, भविष्यन्ति हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, एंड भविष्यसि इज द सेकेंड पर्सन. तम दिया हुआ है, तम मतलब तुम, तो तुम दिया तो सेकेंड पर्सन यू, तो उसमें आएगा भविष्यसि. सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर भविष्यसि. ओके. तो भविष्यसि. नेक्स्ट आओ छतुम अहर्णि मम इति क बोलते. किसने बोला? दैवारी का सन्यासी गुप्तचर ना दुर्गाध्यक्ष. कौन बोला था? दैवारी को. क्यों? जब राजा अपना फेस दिखा दिया और दैवारी को पता चल गया जी भाई राजा आया था, वो बोला था मुझे माफ करिए. दिस पर्टिकुलर. ओके. सन्यासी कुत्र गंतुम इच्छति. गिव द आंसर. सन्यासी राजा समीपम गंतुम इच्छति. ओके. तो ये जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में जो है प्रत्यय निर्देश पूर्वक किदंतना. तो you are 9th standard, you have no idea about the kidantana, so repeat this exercise. Okay. I will be explain after the grammar portion that you have to do, because up to 8th standard there is no kidanto, there is no samaj, there is nothing is there, and it is started from 9th standard. Okay. Then हस्त भूतकाले मतलब लॉन्ग लकार. पास्ट परफेक्ट टेंस लॉन्ग लकार. तो तंग ध्वनि को भावसी. मैंने पहले भी एक दिन बोली थी आप लोग को, जे संस्कृत में कुछ ऐसी जो उपपद है उसका है 21. आई रिपीट दिस वन. इट इज नॉट यू विल बी फाइंड इन योर बुक. सो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट प्र परा अप सम नी अनु आव नी दूर अभि भी अधि शु उत पति अति पड़ी अपि उप आ. दिस 21 जो उपसर्ग है ये जब भी हम लगाते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के पहले डिस लगा दो तो डिसऑनेस्ट अपोजिट वर्ड हो जाता है. संस्कृत में भी भवती है तो अ लगा दो. जो उपपद है प्र पर अपसम नी अनु आवनी दूर अभि भी अधिशु उत्पत्ति अति पड़ी अपि उप आ. ये जो 21 उपसर्ग है, जब भी हम लोग 21 उपसर्ग में कुछ भी एक लगाते हैं तो ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है. तो ऐसे पॉसिबल में जैसे आपने प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? इम्पॉसिबल. आई एम लगाते हो तो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ऑपोजिट हो जाता है. ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ओबीडियंट डिसओबीडियंट. तो ये जो होता है तो संस्कृत में ठीक ऐसे ही होता है, भवती अभवत. ठीक है. तो आप इसको करो. वयम तम ध्वनि को भवसी. भवसी है तो पास्ट टेंस में आपके भवसी दिया है तो सेकेंड पर्सन में है, तो आपको इसको प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में करना है, तो अभवस. ओके. वयम वनेशु वशाम. तो वशाम की जगह में हो जाएगा अपोजिट अ लगा के अवशाम. क अपि रातो न प्रविशति अप्रविशति. ओके. तो अपोजिट इज देयर. एंड यू नो दिस वन. पंडित अकारांतो, जैसे पंडिता. पंडिता कौन सी लिंग हो गया? पंडित
इसका मूल शब्द क्या हुआ? पंडित। कौन सा कारण? तो पंडित। तो के बाद अ है, दैट मीन्स अकारांत, दैट मीन्स अकारांत। यू हैव टू राइट द ग्रामर ऑल्सो, ओके। तो अकारांत। लिंगो पंडित, पंडित दैट मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, तो पुल्लिंग। कौन सा है? पंडित, पंडितों, पंडिते। तो कौन सा पंडित? मतलब प्रथमा एक वचन। इसके लिए आपकी 9th की बुक में पीछे देखना टेबल दिया हुआ है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, 8 तक जो पढ़ा वो उसको भूल जाओ। छोटे छोटे स्टोरी था, पोएम था, कुछ नहीं था, नथिंग वाज इन योर 8th स्टैंडर्ड बुक अप टू। बट 9th स्टैंडर्ड यू स्टार्टेड फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, बी सीरियस बिकॉज next year you will give the exam of 10th board, and 10th Sanskrit is compulsory and this is the scoring marks. आपने अगर संस्कृत पढ़ोगे तो आपकी स्कोरिंग मार्क्स आता है बेटा, इट विल हेल्प टू गेट गुड रिजल्ट, ओके। तो फिर इसमें चले जाओ शब्द रूप। धातु रूप पढ़ दिया, शब्द रूप हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शिक्षा आपको दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ही बोली, हम लोग क्या सीखा था? तीत अंति सीत मीपम। ये टेबल हमेशा दिमाग में एकदम फिट करके रखो। अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो जो धातु रूप की जो टेबल है, मैंने पहले ही बोली हूँ, इन ओनली वन सब्जेक्ट इज देयर ड्यूअल नंबर इज एक्चुअली है, बिकॉज इसकी ड्यूअल नंबर की जो इस्तेमाल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस संस्कृत सब्जेक्ट। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमारा द्विवचन में दिया है शिक्षा, तो आपको एक वचन क्या लिखना है? शिक्षक, सी, थ, थ। तो थ विसर्ग दिया हुआ है, लास्ट वाले थ में विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना। सी, थ, थ। एक्चुअली बोला जाता है सी, थ बोलो आप, अगर आपको याद करना आसान पड़ेगा, ठीक है। थ, थ। तो थ की जगह स उठा के विसर्ग डाल दो, तो सी, थ, ओके। नेक्स्ट आएगा कथयिष्यामि दिया हुआ है, तो मी, कह, म, मी, कह, म। तो आपके कथयिष्यामि दिया तो कथयिष्य से आठ, उसमें आएगा साम, ओके। तो ये आपको करना है। एक नया चीज आपको सीखना है जो 9th में से स्टार्ट होता है, दैट इज द संस्कृत एंड इंग्लिश ऑलरेडी गिवन आंसर। आपको बनाना है, संस्कृत ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, लेकिन उसको फिर आपको मॉडिफाइड करके खुद नया सेंटेंस बनाना है, क्योंकि इंग्लिश संस्कृत जो दिया हुआ है उसमें धातु रूप व शब्द रूप में कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो यू हैव टू मेक ए सेंटेंस, ओके। दिया हुआ है स्टूडेंट्स गो डाउन टू गुरु, ठीक है। संस्कृत में दिया छात्र, गुरु, प्र प्लस नाउन, तो क्या बोलोगे? इसमें छात्र मतलब एक छात्र, पीपल व स्टूडेंट्स मतलब एक छात्र नहीं होता है, तो आपको लिखना है छात्रा। तो छात्रा, गुरु, गुरु को, टू गुरु, तो गुरु। और पूर्णमंती, पहले बोली 3rd पर्सन प्लूरल नंबर, तो क्या आएगा इसमें? छात्रा। आपका संस्कृत इंग्लिश दिया हुआ है, संस्कृत में शॉर्ट दिया हुआ है, आपको ये करना है। इसके लिए आपके 4 मार्क्स रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम, ओके। तो छात्रा, गुरु, पूर्णमंती। ए गार्डनर प्रिपेयर्स ए गार्डन ऑफ फ्लावर्स, मालाकार दिया हुआ है, पुष्पमाला दिया हुआ है, रच दिया हुआ है, तब क्या लिखोगे? मालाकार पुष्पमाला रचयति, मालाकार पुष्पमाला रचयति, क्योंकि मालाकार गार्डनर दिया, एक गार्डनर दिया, तो मालाकार हो गया, और पुष्पमाला मतलब गार्डन मालूम है, और रचयति मतलब बनाते हैं। गणेश राइट्स विथ ए पेन, गणेश दिया हुआ है, कलम दिया हुआ है, और लिख दिया हुआ है। कलम के जगह में आपने यूज कर सकते हो लेखनी, कलम के जगह में आपने संस्कृत में यूज कर सकते हो अंकनी व लेखनी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? गणेश कलमेन लिखति। गणेश एक ही लड़का का नाम बोला है, कंपेयरली 3rd पर्सन सिंगुलर। फ्लावर्स ब्लूसम इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, कुसुम, कुसुम मतलब फ्लावर, गार्डन मतलब उद्यान, और क्या है? बी प्लस कॉस, विकसति, ब्लूसम मतलब खिलना, है ना। तो क्या लिखोगे? कुसुमानी उद्याने विकसन्ति, कुसुमानी उद्याने विकसन्ति, ओके। ए डोरकीपर एंटर्स द पैलेस,
दैवारी को दिया हुआ है, राजप्रसाद दिया हुआ है, प्र धातु दिया हुआ है, प्र उपसर्ग दिया हुआ है, विस धातु दिया हुआ है। तो आपको क्या लिखना है? दैवारी को राजप्रासाद प्रविश्य। तो यू हैव टू राइट द all exercise in your notebook. Okay, always remember you are student of 9th standard. आपने 9th में आए हो तो आपको आंसर खुद लिखना है। ओके बेटा, एंड आंसर द क्वेश्चन आंसर इन योर इंग्लिश, यू कैन डू इट। सो टुडे लेसन नंबर 10 we have done. So you have to write the question answer in your notebook. Okay.